Good morning, guys. So we are starting with our today's lecture. I hope internal exam was good. As I suggested to you all, कि if you practice, then only you will be able to answer the questions. अच्छा था exam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So so what we are going to do now? We are starting with the topic where we have left last time. That is file section. So in last lecture, we have already done discussing about. Okay, I hope PDF file is visible to you. So file section we have started, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे open function. So how to open a file we are already done. यहाँ पे आपको syntax दिया हुआ है. हम लोगों ने programs भी कर लिए. Access mode आपका कौन सा है? तो रीड मोड होगा, राइट मोड होगा, वो सब हम लोगों ने देख लिया है. देन बफरिंग क्या होगा? बफरिंग मीन्स इफ फाइल टेक्स जैसे नॉर्मली बफर होता है. सो आपके कुछ वैल्यूज जो आएंगे वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे सेव रहेंगे एंड यहाँ से वी कैन process it. That is what it means. Then we have different modes. You supposed to remember these modes for MCQs. Okay, so read mode है, read in binary, R plus, that is read plus writing, read in binary format with writing. So reading and writing in binary format. तो ये वे में आपके अलग अलग मोड्स है. ए का मतलब होगा अपेंड, ए बी का मतलब होगा अपेंड इन बाइनरी फॉर्मेट. A plus append and reading, both the operations are there. Append and reading in binary format. तो ये आपके operations है. आपके file attribute, you can open the file, you can close the file, and we can also return the name of the file just by writing file.name. So यहाँ पे आपको कुछ programs दिए हुए हैं. Before we discuss this program, I just wanted to again just keep you revised that we have already done discussing all these programs in our last lecture. तो हम लोगों ने फाइल वन बेसिक फाइल कैसे ओपन करते हैं ये देखा था हम लोगों ने. देन in next program we have already done discussing data, कैसे फाइल में से आप रीड करेंगे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन दैट वे. Then third program, how to write data within a file and then close the file. Then उसके आगे how we can write multiple lines within the same file, ये भी देख लिया हम लोगों ने. Then if I want to check something is present within that file or not, तो उसके लिए what we can do, we can simply apply this if statement, जहाँ पे आप क्या करेंगे, if some word is there present in आर फाइल, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, या फिर जो भी आपका मैसेज है वो रिटर्न करेगा. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इसके बाद में नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई अ प्रोग्राम. जैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं ना कि कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट आपको जनरेट करना है. So exactly same way we are going to write a program through which we are going to just generate a table. We are going to generate a table in our we'll create a file and Python program के थ्रू जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट किया उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे.
जैसे आप देख लो कि इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 9 9 2 18 लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लेक्चर 17, न्यू फाइल, फाइल 1.python। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 ऑपरेशंस किए थे, तो आई जस्ट रीनेम दिस फाइल ऑपरेशंस अंडरस्कोर टेबल क्रिएशन। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो आपका एक प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ओके, कैन यू गाइस ट्राई दिस? सिंपल सा 1 का 2 का कोई भी एक टेबल आपको फाइल में प्रिंट करके बताना है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइल्स वाले प्रोग्राम्स किए थे। ओके, चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ मुझे, बाद में मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ट्राई इट क्विकली। आई होप पीपल आर ट्राइंग। यस नो? Yes, sir. अदर्स? एस वाइज? हेलो? ओके, चलो जल्दी ट्राई करो। चलो, हाउ मेनी ट्राइड? Raise your hands. How many are trying right now? Guys, get 2 people, 3. Okay, very good. So we have tried. Okay. Um, so we are just going to try this. Let me just share my screen. So basically यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स अगर मुझे जनरेट करने हैं, तो आई कैन जनरेट मल्टीपल टेबल्स एज वेल। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में रेंज 1 रखा है, मैं सिर्फ सॉरी मैं रेंज 2 रखता हूँ। तो ये आपको स्टार्टिंग विद 2, ठीक है। एंड उसके आगे अगर मेरा रेंज जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक का आपको ये टेबल जनरेट करके देगा। बेसिकली ये पैटर्न होता है। ओके, तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 रखा है, तो आपको एक ही टेबल आएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट टाइम है ना ओपन फंक्शंस देखा था विद स्टेटमेंट वाला, ये। तो वो सेम जो विद स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो विद देन हम लोगों ने एफ फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब चाहिए विदाउट एफ फंक्शन भी आप कर सकते हैं, नथिंग दैट डिफिकल्ट। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं दिस इज आवर टेबल, दिस इज आवर टेबल ऑफ टेबल एग्जाम्पल। देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे, दैट इज आई। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बराबर है।
एंड हम लोगों को करना क्या है बेसिकली, हम लोग टेबल फाइल के अंदर प्रिंट करने वाले हैं. दैट मीन्स वी हैव टू डू अ राइट ऑपरेशन. और यहाँ पे मैंने इसको फाइल हैंडल दे दिया, दैट इज एफ. ये ब्रैकेट के बाहर आएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल हैंडल दे दिया. तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग टू का टेबल लिखेंगे. तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हम लोग करने वाले हैं कि हम लोगों के पास टू का टेबल है. देन उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब टू का टेबल लिखने के लिए, टू का टेबल प्रिंट करने के लिए जो लॉजिक है वो हम लोग आगे डालेंगे यहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन रेंज. देन कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, तो आपका टेबल 1 से 10 तक जाता है, तो हम लोगों ने 1 से चालू किया, 11 तक लेके गया. एज वी नो रेंज में आप जो हाईएस्ट नंबर दोगे उससे एक नंबर कम तक आपका ये टेबल वर्क करेगा. देन व्हाट, राइट. राइट ऑपरेशन होगा बिकॉज हम लोग फाइल में कुछ लिखने वाला है. देन एंड यहाँ पे अभी हम लोग सिंपल अपना जो लॉजिक है ना टेबल क्रिएट करने का. तो आई का मतलब क्या होगा, अगर आई का वैल्यू 1 2 जो भी है वो आएगा. देन उसके आगे एक्स प्रिंट होगा, स्पेस देता हूं मैं. देन उसके बाद में आपको क्या चाहिए, प्रिंट जे. तो अगर जे का वैल्यू क्या होगा 1 2 3, तो वैसे वैसे आते जाएगा. आप देखो आपको पता चलेगा. इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपको क्या करना है, आई मल्टीप्लाई विद जे करना है. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 1 जा 2, बिकॉज 2 into 1 कितना होगा, 2 ही होगा. देन 2, ये आई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 into 2 कितना होगा, 4 होगा. तो वो यहाँ पे आंसर आएगा 4. सो दैट वे वी आर गोइंग टू प्रिंट इट. ठीक है. एंड एक बार हम लोग हो गया. सो ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोगों के पास ये देखो, ये हम लोग के पास ये वाला एग्जाम्पल आ गया. हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे स्लैश एन डालना पड़ेगा. वहाँ पे स्लैश एन डालेंगे, व्हाट डू यू थिंक, जहाँ पे आपका टेबल प्रिंट हो रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई जस्ट पुट स्लैश एन एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड गो बैक टू दिस. तो ये देखो, ये आपका जीरो का टेबल आ रहा है. अब जीरो का टेबल क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे रेंज क्या बोला है, 2 ही बोला है. तो खाली वो स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है. दूसरा जो वो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, देखो. तो मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला कि आपको जो टेबल प्रिंट करना है वो टेबल आपका कहाँ से कहाँ तक का रहेगा. तो 2 का रेंज मैंने बोला है, मतलब 0 and 1, दैट इज गोइंग टू बी माई रेंज, बराबर है. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला उसने 0 का टेबल डाला, बाद में 1 का टेबल डाला. अब मुझे चाहिए कि सपोज 2 या 4 या वही कोई एक अगर रेंज आए, तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं. आई कैन राइट इट लाइक 4 कोलन. अब मुझे कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, सपोज मुझे चाहिए सिर्फ 4 का टेबल चाहिए. तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4:5. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो, सॉरी 6 डालता हूँ मैं. तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्टार्ट करेगा, एक सेकेंड. ओके, कॉमा आएगा, सॉरी. सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने टेबल लिखा. यहाँ पे देखो, ये आपका और एक टेबल आ गया 4 का एंड 5 का, दो टेबल्स आ गए. ठीक है. सो ये वे में क्या है, मैं चाहिए उतने टेबल्स यहाँ पे बना सकता हूँ. ये देखो आपने जो ये स्टेटमेंट डाला है ना, ओपन दिस इज आर टेबल एग्जाम्पल,
ये आपका फाइल क्रिएट हो रहा है, देखो दिस इज आवर टेबल एग्जाम्पल। तो 0 का टेबल आया, 1 का टेबल आया, 4 का आया, 5 का आया, ठीक है। तो ये वे में आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो ये हर एक में है ना, ये 11 आ रहा है लास्ट में। तो 11 का मतलब क्या है कि वो एक एक्स्ट्रा स्लैश एन डाल रहा है। तो उसके लिए एक सेकेंड, हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली वी कैन जस्ट से इफ a is not equal to 10, अगर j नॉट इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे आई कैन राइट f डॉट राइट स्लैश n, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर हटा देते हैं, तो अब जब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको ये 5 और 4 का जो टेबल है ना वो 10 तक का मिलेगा, 11th वाला नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये 11th नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। सो वो स्लैश एन कब तक अप्लाई करेगा, जब तक आपका वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 10 है, जे का वैल्यू जैसे ही 10 होगा स्लैश एन अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे चाहिए आप उतने टेबल बना सकते हैं ये वे में, और आपके उतने फाइल्स बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 11, तो 4 to 11 तक के आपके टेबल्स बनेंगे, आपके उतने फाइल्स बनेंगे। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो ये मेरा आ गया 10 का टेबल, देन ये 9 का टेबल आ गया, ये 8 का आया, देन 7, देन 6, सेम लाइक दैट। Okay, I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? Anyone, any doubts, guys? Okay, so yeah, we can follow this pattern as well. जैसा धार्मिक ने किया है, where we are asking user to enter any number and उसको हम लोग लेके then we are uh, trying to generate a table for that. वेरी गुड। तो हम लोगों ने ये टेबल जनरेशन वाला लॉजिक पहले भी किया था, तो सेम वे में हम लोग यहाँ पे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो। चलो, यू हैव टू ट्राई दिस प्रोग्राम। यू हैव टू आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर, और यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर का आप टेबल जनरेट करके बताएंगे यूजर को। चलो, क्विक क्विक। सो वी हैव टू प्रिंट द सेम आउटपुट इन एनी फाइल, ठीक है। डू ट्राई गाइस, जल्दी से करना। And if I try to open a new file here, example.python, अब देखो यहाँ पे जब अगर हम लोग कोई एक फाइल ओपन करने का ट्राई करेंगे ना, तो वो फाइल बहुत इजीली ओपन हो जाता है। सो आई कैन राइट, जैसे मैं यहाँ पे विथ अगर यूज करता हूँ, इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने विथ स्टेटमेंट लिया था, ठीक है। सो जब अगर मैं विथ यूज करता हूँ तो यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग कोई एक फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर वो फाइल आपका ये स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं है, वो फाइल अगर आपका मेन जो फोल्डर है, जैसा मेरे पास यहाँ पे मेन मेरा जो फोल्डर है ना वो है डिवीजन ए वाला, तो उसके अंदर मेरा वापस सब फोल्डर है दैट इज लेक्चर 17। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं डायरेक्टली कोई एक फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे समझ लो या राइट पाइथन
दिस इज माई फाइल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई मेरा फाइल है, तो जैसा विथ स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये आपका विथ स्टेटमेंट वाला फाइल है। तो विथ स्टेटमेंट वाले फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू ओपन एनी स्पेसिफिक फाइल, है ना। तो हम लोग को एक फाइल देखेंगे जो आपका आउट ऑफ फोल्डर में अवेलेबल है, एंड आई कैन ओपन दैट फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे टेबल एग्जाम्पल 2 फाइल, देन सेम पैटर्न, आपको सिर्फ नाम जो है वो यहाँ पे कोई दूसरा फाइल का जो नाम है वो करना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे राइट पाइथन डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल है, तो यहाँ पे मैं वो फाइल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है आपने, खाली नाम आपको चेंज करना है। तो विथ ओपन राइट द फाइल नेम एंड द मोड। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन, फाइल नेम होगा मेरा विथ स्टेटमेंट डॉट टी एक्स टी, ओपन इट इन राइट मोड। सो ये हम लोगों का फाइल हो गया जिसको हम लोग ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज ऑलरेडी देयर, ओके। एक बार ये मुझे फाइल मिल गया, इसके बाद देखो अब यहाँ पे ये फाइल मेरा ओपन हो गया। और दूसरी बात कि आपको एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उसके साथ ही अगर डेटा अगर आपको उसी में अगर ऐड करना है तो हम लोग अपेंड यूज करेंगे, सिंपल है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ये सेम पैटर्न यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ओपन अ फाइल इन अ राइट मोड। तो एक बार मेरा फाइल ओपन हो गया विथ स्टेटमेंट के थ्रू। विथ स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था, सो दैट फाइल आपका ऑटोमेटिक मोड में ओपन होगा राइट के लिए या रीड ऑपरेशन के लिए। हम लोगों को अलग से वापस वहाँ पे क्लोज स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका लॉजिक है, ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब ये जो मेरा लॉजिक है, दिस इज माय लॉजिक, ठीक है। तो ये 2 लाइन का आपका लॉजिक आ गया। ये सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे विद, सॉरी फाइल क्रिएशन कहाँ गया, ये वाला। तो यहाँ पे ये सेम लॉजिक अप्लाई होगा हम लोगों का। एंड एक इनपुट स्टेटमेंट हम लोग जो है वो यहाँ पे कहीं पे हम लोग एक इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोल देंगे यूजर को कि भाई एंटर एनी नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू, टाइप कास्ट करता है स्टार्ट में ही इंटीजर के अंदर, इनपुट एंटर अ नंबर टू जनरेट टेबल, ठीक है। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कैच कर लेंगे। देन यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज एफ, फाइल हैंडल को मैंने नाम दे दिया एफ, ठीक है। तो इसके लिए ये एफ रिकॉग्नाइज हो गया, सिंपल है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये हम लोग ने यहाँ पे नंबर डाल दिया सपोज 10, ओके। एंड अभी मेरे पास जो फाइल है उसके अंदर हम लोग देखते हैं, स्लैश एन नहीं डाला है, तो यहाँ पे हम लोग स्लैश एन डाल देते हैं। सॉरी होम फाइल में डाल रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हैं। तो हम लोग का फाइल है विथ स्टेटमेंट डॉट टी एक्स टी, विथ स्टेटमेंट डॉट टी एक्स टी, ये रहा। इसको मैं वापस एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। I'll write 11 एंड यहाँ पे आपका टेबल आ गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पे अगर अभी सेम सेम लॉजिक अप्लाई होगा, आपको ये लास्ट वाला, ये जो 11th वाला जो नंबर आ रहा है वो अगर नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे वो सेम लॉजिक वापस लिख देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, दिस वन, ठीक है। फॉर
जब कभी j का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 10 है तब तक /n अप्लाई करते रहो. तो आई कैन राइट इफ j नॉट इक्वल टू 10, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, आई कैन सिंपली जस्ट गिव दिस स्टेटमेंट, दैट्स इट, f डॉट राइट /n. बस यही आपको करना है, f डॉट राइट डबल कोट्स /n. और यहाँ से ऊपर से हम लोगों ने निकाल दिया उसको, सेव किया, एग्जीक्यूट किया. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल ऑफ 10 एंड विद स्टेटमेंट आपका 10 का टेबल आ गया प्रॉपरली एकदम. ठीक है. So I hope this is very clear to everyone. Anyone, any doubt? Let me know. Anyone, any doubts? Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now थोड़े कुछ प्रोग्राम्स हम लोग के नोट्स में जो है वो देखेंगे हम लोग. So here we go. We have programs. तो ओपन फंक्शन कैसे काम करेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है. As you can see, we have a open function. Then उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो फाइल ओपन करना है उसका नाम दे रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ओपन दैट फाइल इन राइटिंग मोड. एंड उसके बाद में प्रिंट नेम ऑफ द फाइल. आप डायरेक्टली फाइल का नेम प्रिंट कर सकते हो. देखो यहाँ पे फाइल हैंडल, आपने यहाँ पे FO नाम का फाइल हैंडल बनाया हुआ है. तो फाइल हैंडल डॉट नेम, तो वो ये फाइल का नेम प्रिंट करेगा. f डॉट क्लोज, तो वो फाइल क्लोज है कि नहीं ये बताएगा, है ना, क्लोज्ड और नॉट. तो यहाँ पे ये बताएगा f डॉट क्लोज में क्लोज है. देन मोड के अंदर वो कौन सा मोड है वो बताएगा. तो यहाँ पे ये फाइल क्लोज है कि नहीं ये बताएगा. तो यहाँ पे देखो क्लोज्ड और नॉट फॉल्स, मतलब फाइल ओपन है, क्लोज नहीं है. f डॉट मोड, FO डॉट मोड, मतलब वो यहाँ पे सिंपली कौन सा फाइल का हम लोग का कौन सा मोड है वो बताएगा. तो हम लोगों ने उसको राइट इन बाइनरी फॉर्मेट, ये हम लोगों ने मोड में ओपन किया है फाइल. तो ये आपको सिंपल वे में इसका मेथड बता रहा है. सो यहाँ पे देखो, इफ आई डायरेक्टली एग्जीक्यूट दिस कोड ना, तो क्या होगा, आपका एक फाइल क्रिएट होगा, लेकिन वो फाइल आपका जो फोल्डर है वो फोल्डर के अंदर नहीं होगा. जैसे हम लोगों का ये आउट ऑफ फोल्डर जो है ना मेन, उसके अंदर आपका एक फाइल क्रिएट होगा. तो इफ आई राइट हियर फाइल example.python, पे हम लोग का कोड आ गया. हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ओपन वन फाइल. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ये देखो ये आपका आउटपुट आ गया. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका एक फाइल आ गया रहेगा. कहाँ पे है, ये रहा, देखो दिस इज आवर फाइल. ठीक है. सो आपको यहाँ पे पूरा जो फाइल जो कंप्लीट आपको पाथ जो देना पड़ता है, दैट पाथ वी सपोज टू प्रोवाइड व्हेन आई वांट टू क्रिएट एनी फाइल विद इन दिस लेक्चर 17. जो मेरा आज का फोल्डर है दैट इज द सब फोल्डर. But if I want to create directly on within my main folder, then I should not supposed to give any such extensions out here. ठीक है. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubt? Let me know. Anyone, any doubts? No, Guys. sir. Sir, can you explain this code? Okay. हाँ सिंपल तो है कोड बेटा. देखो हम लोगों ने यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज किया. ओपन फंक्शन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू ओपन वन फाइल. ओके. अगर मुझे विद स्टेटमेंट के थ्रू अगर इसको ओपन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं कोड कर दूं, कमेंट कर दूं, सॉरी, क्या करेंगे बताओ जल्दी से. व्हाट वी आर गोइंग टू डू with open bracket file name and then Yeah. write mode. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, foo.txt कॉमा
आपको कौन से मोड में ओपन करना है, सपोज W मोड, बराबर है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया एंड उसके बाद में विद इन दिस आई कैन सिंपली जस्ट राइट दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मुझे फाइनली वहाँ पे जो क्लोज लिखा हुआ है वो क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विद स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिक वन, है ना। एंड यहाँ पे मैं उसको फाइल हैंडल दे दूंगा तो F4 रिकॉग्नाइज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल हैंडल दैट इज FO, दैट्स इट। एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो ये देखो दिस गिव्स द सेम आउटपुट। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लोज या ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। विद स्टेटमेंट के थ्रू इफ यू ट्राई इट डज इट ऑटोमेटिकली फॉर यू। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है? Yes, sir. Okay. So let's go back to our notes. क्लोज मेथड क्या होगा ये सब हम लोगों ने देख लिया है। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल, राइट मेथड क्या होगा एंड रीड मेथड क्या होगा, वी ऑलरेडी डन। So if I want to write something, we can write with the help of write function. जैसा भी हम लोगों ने प्रीवियस टेबल जब ऐड किया था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था विद स्टेटमेंट यूज किया हम लोगों ने, फाइल को राइट मोड में ओपन किया एंड देन वी कैन यूज राइट फंक्शन टू राइट एनीथिंग विद इन दैट फाइल, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो फाइल ओपन किया है उसके अंदर एज इट इज मेंशन हियर, इफ आई वांट टू राइट समथिंग तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल वही है राइट FO, दैट इज माय फाइल हैंडल है यहाँ पे FO एंड उसके आगे राइट फंक्शन एंड ब्रैकेट में जो भी कुछ है वो यहाँ पे आई विल गोइंग टू राइट, बस। तो आपका राइट ऑपरेशन हो जाएगा। रीड ऑपरेशन वर्क्स सिमिलर वे। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। फाइल पोजीशन पॉइंटर आपका कहाँ पे है, तो सिक फंक्शन इज देयर। पॉइंटर मतलब जैसा भी ये मेरा माउस पॉइंटर है अब देखो ये लाइन के स्टार्टिंग में आ गया, अब ये लाइन के एंड में आ गया मेरा माउस पॉइंटर जो ब्लिंक हो रहा है, दैट्स माय कर्सर। तो अब मैं इसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ये देखो ये एक एक लाइन नीचे आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको टॉप पे डाला तो ये सबसे ऊपर आ गया। फाइल पोजीशन पे रखा मतलब सपोज ये मेरे फाइल का फर्स्ट लाइन है तो मेरा फाइल पॉइंटर फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे वी हैव दिस टेल मेथड टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, कि आप जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ THE वर्ड पे हूँ, मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मेरा कौन सा आएगा, टेल इज द नेक्स्ट वर्ड, उसके बाद में मेथड इज द नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे ये आपको बता सकता है। और उसके आगे सीक जो है वो क्या करेगा, चेंजेस द करंट पोजीशन। जैसे अगर मैं अभी बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे हूँ, मैं देखो यहाँ पे THE पे हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट में जाना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में ये वे में जा सकता हूँ। हम लोग के पास होम एंड ये सारे हम लोग के स्टार्ट हम लोग के पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स होता है। फाइल में आपको विदाउट ओपन किए अगर करना है तो ये वाला पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। एंड फ्रॉम इज set to 0, the beginning of the file is used as the reference position. If set is equal to 1, current position is used, and if set is 2, then end position. तो मैं डायरेक्टली माउस पॉइंटर को सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने माउस पॉइंटर को ये फ्रॉम फंक्शन में अगर सेट किया 0 पे तो मतलब मेरा माउस पॉइंटर बाय डिफॉल्ट एकदम स्टार्टिंग में जाएगा। अगर 1 पे सेट किया तो मतलब जो करंट पोजीशन माउस पॉइंटर का है वहां पे रहेगा, एंड अगर मैंने उसको 2 पे सेट किया तो एंड ऑफ लाइन पे जाएगा। अब आप देखो कि ये जरूरी क्यों रहता है। जैसे अब मैं जब ये PDF रीडर यूज कर रहा हूँ ना तो ये PDF रीडर अगर मैं क्लोज करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो फाइल है ना वो यही पॉइंट से चालू होता है। व्हाई? बिकॉज इसने फाइल पोजीशन जो है वो याद रखा है। आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं, आपने देखा रहेगा कि आप वो बुक या जो भी PDF फाइल है, यू क्लोज दैट PDF फाइल।
Next time when you open it, it opens again at the location where you last left it before closing. तो जहां तक आपने पढ़ा है वहां से ही वो वापस ओपन होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, if I try to handle or work with any PDF or any file जो 200, 300, 500 पेजेस बड़ा है एंड एवरी टाइम अगर मुझे स्टार्ट से वो फाइल जो है उसको स्क्रॉल करके देन आई सपोज टू गो टू माय करंट पेज, और वो भी अगर मैंने याद रखा है तो ठीक है, अगर मैंने याद नहीं रखा है तो वापस फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा. सो दैट टेक्स एफर्ट्स. तो उसके लिए ये जो फाइल पोजीशन वाला पॉइंट है वो आपको याद रखना है. लेट्स सी इफ आई क्लोज दिस फाइल. हाँ, ये पाइथन नोट्स वाला जो फाइल है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ. मैं ये पीडीएफ को ही क्लोज कर रहा हूँ. मैंने क्लोज कर दिया. नाउ आई विल अगेन ओपन दिस पीडीएफ. तो जब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ ना, ये देखो मैंने वापस इसको ओपन किया. आई विल जस्ट रीशेयर. तो जहां पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वही स्पेसिफिक पॉइंट से ये वापस स्टार्ट हुआ, और आपका माउस पॉइंटर जो है वो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो वो ब्लिंक करना चालू करेगा जहां पे आप क्लिक करेंगे. लेकिन उसने क्या याद रखा, फाइल पोजीशन वाला जो पेज है दैट इज द पेज जहां पे आप स्टॉप कर रहे हो. ठीक है, एनीवन एनी डाउट? एनी डाउट्स? No, sir. क्लियर है? No, sir. सो यू हैव टू ट्राई दिस प्रोग्राम. सो हम लोग जब कोई एक फाइल के साथ वर्क करते हैं एंड इफ यू आर रीडिंग दैट फाइल डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा, देन वी हैव टू कीप पोजीशन. विल ट्राई दिस प्रोग्राम. चलो, I'll create a new title, file position dot python. ओके, और बाकी के जो है वो सारे हम लोग क्लोज कर देते हैं. सो फाइल पोजीशन डॉट पाइथन, दिस इज द ओनली फाइल विच इज गोइंग टू बी देयर. हम लोग को करना क्या है, बहुत सिंपल. आई एम गोइंग टू ओपन वन फाइल, तो मैं यहाँ पे विद फंक्शन यूज करूंगा. आई एम यूजिंग विद ओपन. कौन सा फाइल ओपन करो? foo.txt फाइल. कौन से मोड में ओपन करेंगे हम लोग? सो लेट्स से आर मोड में, आर प्लस मोड ट्राई करते हैं. आई होप यू रिमेंबर आर प्लस मोड, मतलब रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन हो पाएगा. इसके बाद में जो भी कुछ अगर हम लोग लिखेंगे वो बेसिकली ओके. इसके पहले लेट मी जस्ट ऐड समथिंग विद इन दिस फाइल. तो कहाँ गया ये वाला? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट सिंपली ऐड, एक राइट फंक्शन डाल देते हैं इसमें, फाइल में कुछ ऐड कर देते हैं. तो फाइल में ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग फाइल में राइट करने के लिए? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टेबल क्रिएशन में क्या किया था, राइट लिखा था फाइल हैंडल के थ्रू. सो यहाँ पे मेरा फाइल हैंडल क्या है, FO है. तो आई विल राइट FO डॉट राइट ब्रैकेट, this is example, then /n. उसके बाद में again we can continue of python /n. ठीक है, now go to this. हम लोग के पास दो लाइन आ गए. अब हम लोग फाइल पोजीशन पे जाते हैं. तो अब जब मैं यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन करूंगा तो वी हैव समथिंग टू रीड फ्रॉम दिस फाइल. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब हम लोग यहाँ पे रीड करने का ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग एक str वेरिएबल बनाते हैं, FO दैट इज माय फाइल हैंडल.
डॉट रीड। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, जो भी मैं कुछ रीड करूँगा आई एम गोइंग टू सेव दिस विद इन दिस वेरिएबल, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 एंड हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैंने फाइल हैंडल नहीं बनाया तो एज एफओ लिख दिया मैंने। देन प्रिंट, प्रिंट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीडिंग फाइल, एंड उसके आगे क्या रीड किया हम लोगों ने, str वेरिएबल में जो भी डेटा आया वो हम लोगों ने रीड किया। उसके बाद में अब मुझे क्या चाहिए कि करंटली मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे है ना, वो आपको बताना है। मैं यहाँ पे और थोड़ा लाइन ऐड कर देता हूँ। ओके, सो वी हैव एडेड इनफ ऑफ लाइंस हियर। अब यहाँ पे जाता है। अब what we are going to do, we are just going to write something which gives the position of our mouse pointer। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया position equal to my file handler dot we have tell function, जो आपका माउस पॉइंटर का पोजीशन बताएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा print position of and comma position variable। ठीक है, सो ये देखो, ये करंट पोजीशन मेरा क्या बता रहा है, 10 बता रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, आपको कितने कैरेक्टर्स रीड करने वो मैंने बताया था यहाँ पे। तो रीडिंग दिस फाइल, दिस इज एग्जाम्पल, 10 कैरेक्टर्स उसने मतलब वहाँ तक के कैरेक्टर्स इसने रीड किए। और उसके बाद में मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे, एक्स के आगे है, एक्स के ऊपर है मेरा माउस पॉइंटर। सो अभी मैं अगर रीड करूँगा तो उसके आगे से रीड होना चालू होगा। अब अगर वापस अगर मुझे उसको स्टार्ट में अगर लेके आना है तो मैं यहाँ पे वापस क्या कर सकता हूँ, वी कैन जस्ट सिंपली यूज द सेम वेरिएबल फाइल हैंडल डॉट। अब मुझे माउस पॉइंटर को वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे अगर लाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0,0 पे पोजीशन लेके आओ। ठीक है, एंड उसके बाद में मेरा पोजीशन जो है वो वापस 0 पे आ गया। एंड आई कैन राइट str इक्वल टू f4 डॉट रीड। क्या रीड करो, मैंने यहाँ पे लिख बोल दिया 10 कैरेक्टर्स रीड करो। एंड वापस यहाँ पे जैसा है ना वैसा मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ रीडिंग फाइल करके। एंड यहाँ पे अभी मेरा माउस पॉइंटर जो है, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंटर एंड पोजीशन वेरिएबल, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये देखो आपका न्यू पोजीशन 0,0 पे आ गया। एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू रीड दिस फाइल, जहाँ पे वापस 10 कैरेक्टर्स रीड हो रहे हैं। क्लोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज विद स्टेटमेंट यूज़ किया है, तो वी आर नॉट सपोज टू क्लोज दिस फाइल, विद स्टेटमेंट विल डू इट ऑटोमेटिकली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो। चलो जल्दी ट्राई करो। पोस्ट योर आउटपुट इन चैट क्विक। पोस्ट योर आउटपुट्स इन चैट जल्दी से। ओके, और इसके साथ में वी कैन डू वन मोर थिंग एज वेल। गाइस ध्यान से देखना,
यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8, आपने UTF-8 सुना रहेगा। ऑफ UTF-8, what is the purpose of UTF-8? Guys, Sir, to read any language. क्या क्या? Sir, to read different languages. ओके, सो बेसिकली UTF में क्या होगा कि आपका जो भी फाइल है वो एक यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जिसके थ्रू एनीवन कैन इजीली रीड दिस फाइल। तो अगर मैं ये सेम फाइल को इफ आई ट्राई टू ओपन इट इन इंडिया और इन सम अदर कंट्री वर्ल्ड वाइड, दिस विल बी सपोर्टेड। सो इसके लिए हम लोग के पास यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। चलो जल्दी करो। सो एनकोडिंग, ये एक वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे सो दैट दिस रिमेन्स अ हैबिट देयर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जब कभी अगर कुछ पढ़ोगे ना तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा। चलो डू इट क्विकली। एंड अगर सारे लाइंस अगर रीड करने हैं आपको तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वी कैन राइट और line in FO, that is my file handle. And उसके अंदर we can simply just write print line। तो क्या होगा, 1 by 1 लाइन प्रिंट होगा और एंड ऑपरेटर हम लोग देंगे, ठीक है। सो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इट गिव्स हर लाइन के बाद में ये आपको बाकी की कंटेंट न्यू लाइन पे लेके जाएगा। ये देखो आ गया ना। तो दिस इज EX, ये आपने ऑलरेडी रीड कर लिया। उसके आगे का एग्जाम्पल का ये जो एम्पल है ये आया और उसके आगे के 3 लाइंस हम लोग के प्रिंट हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म इट। एंड रीड लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि रीड लाइन के थ्रू क्या होगा, 1 by 1 जो लाइन है वो आपके नए नए नेक्स्ट पार्ट में आते जाएंगे। दैट इज वी ऑलरेडी डन डिस्कसिंग read line function. Any doubt, let me know. Guys, any doubts? Hello. No, sir. No, sir. चलो जल्दी से ट्राई कर लो ये and then we'll move to next. सिर्फ यहाँ पे अगर मैं instead of this, okay, instead of this, if I just try to work like word equal to line dot, ये देखो split function है मेरे पास। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम सिंपली गोइंग टू प्रिंट वर्ड। लेट्स सी क्या होता है, क्या हो रहा है देखो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इट शोइंग, स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है, It is converting it into list. या सो इट विल सेपरेट आउट ऑल द वर्ड्स और वो सिंगल सिंगल वर्ड्स आपके यहाँ पे वो हाईलाइट करके प्रिंट कर रहा है। यस जैसा हम लोग का लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट होता है दैट वे।
सो मेरा जो भी वर्ड है जहाँ पे भी स्पेसिंग आया ना उसको वो यहाँ पे हाईलाइट करके प्रिंट करेगा। साथ में करते जाओ। तो ये हम लोगों ने स्प्लिट फंक्शन देख लिया। इसके बाद में यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप, नो डाउट्स। Is it done till this point? Yes, sir. So हम लोग single lines, if you want that also you can read just with the help of a for loop. तो for loop में 1 by 1 lines आपके वेरिएबल में आएंगे लाइन वाले, एंड उसमें से we can print that variable. Words अगर split करना है तो we have split function. So with the help of that split function we can simply split all the words. Okay. आई थिंक उसके बाद में तो सारी चीज़ें हो गए हम लोग के। आई जस्ट गिव यू 1 मिनट टाइम, जिसका बाकी है जल्दी से नोट कर लो। सो नाउ विल अगेन मूव बैक टू आवर नोट्स। एक बार चेक कर लेते हैं और उसमें क्या बाकी है। सो वी हैव रीनेम मेथड। ओके, सो यहाँ पे देखो, रीनेम मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, करंट फाइल एंड न्यू फाइल नेम। करंट फाइल नेम एंड न्यू फाइल नेम, और फाइल जो रीनेम होगा ना वो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है। दैट मीन्स यू माइट बी यूजिंग विंडोज, लिनक्स, मैक, एनी ओएस। तो वो टाइम पे हम लोग ओएस मॉड्यूल यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ओएस डॉट रीनेम, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वी कैन रीनेम दैट फाइल। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यू सपोज टू इम्पोर्ट ओएस वाला जो हम लोग का मॉड्यूल है, एंड देन वी कैन यूज दिस रीनेम फंक्शन। So in the same file we can try, we can just go to this file. यहाँ पे top में I can just simply write top, we can write import OS, that's our package, and after this we can just say renaming file using this package। कौन सा फाइल आपको रीनेम करना है? तो आई से आई वांट टू रीनेम foo.txt वाला जो फाइल है वो। सो आई कैन राइट os.rename फंक्शन। करेंटली मेरा जो फाइल है उसका नाम है foo.txt। रीनेम दिस टू फाइल example.txt। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोगों का जो फाइल है ये रहा, पाइथन फाइल example.txt, और इसके अंदर आपके सारे कंटेंट आ गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो। ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट हो गया, जहाँ पे we just learn how to rename the file. After renaming we have something which is called as remove. So बहुत सिंपल है। remove के लिए भी we supposed to have OS package, ठीक है, OS package supposed to be there।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू राइट os डॉट रिमूव एंड उसके बाद में इफ आई ट्राई टू रिमूव foo डॉट txt, तो ये वाला फाइल रिमूव नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस इज रीनेम्ड. सो इफ आई ट्राई टू रिमूव दिस, क्या बता रहा है देखो, ओपन फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं जो foo डॉट txt ट्राई कर रहा हूँ वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है. क्यों? मैंने रीनेम कर दिया उसको. सो नाउ वी सपोज टू अगेन क्रिएट अ न्यू फाइल. यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ ना ये फाइल. सो यहाँ पे इसकी वजह से ये एरर देगा अभी. सो इफ आई जस्ट कमेंट दिस, स्टिल दिस गिव्स द एरर. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास पाइथन एग्जाम्पल जो है इसको I'll just rename, I'll write foo.txt and then if I try to execute this, ये देखो ये execute हो रहा है but that file is deleted, completely deleted. क्यों? os.remove फंक्शन मैंने यूज किया. तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको अभी वो फाइल नहीं मिलेगा. ये तो हम लोग का फोल्डर है. यहाँ पे देखो आपको कहीं पे भी foo.txt नहीं मिलेगा बिकॉज दैट फाइल इज डिलीटेड नाउ. दैट्स रिमूव फंक्शन. Same way, I can create directory as well. तो यहाँ पे अभी मैं एक फाइल जो है ना इसको मैं यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो फाइल है ना इसको मैं रीनेम करके I'll just write it foo.txt. ठीक है. अब ये जो रिमूव वाला इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड आई कैन राइट os.mkdir. अपने लिनक्स में पढ़ा रहेगा, विंडोज में भी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके mkdir, दैट इज मेक न्यू डायरेक्टरी, एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए वी यूज दिस कमांड. एंड यहाँ पे आई कैन राइट फाइल dir, दैट्स गोइंग टू बी माय न्यू डायरेक्टरी व्हिच विल बी क्रिएटेड हियर. तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके. सो यहाँ पे देखो अभी आपका एक नया डायरेक्टरी बन गया रहेगा. कहाँ है ये मेरा फोल्डर, दैट इज 17. ये रहा देखो फाइल dir. दिस फोल्डर इज एम्प्टी फॉर नाउ, लेकिन ये नया फोल्डर बन गया. तो विद द हेल्प ऑफ mkdir आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर. देन अगर मुझे अगर ये जो फोल्डर है इसमें अगर चेंजेस करना है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ. ठीक है. जैसे लेट्स टेक अ एग्जांपल. मुझे ये फोल्डर को जस्ट 1 मिनट, what I want to do, I want to move one folder which is there, that is file dir. तो मुझे क्या करना है, ये फोल्डर को मुझे chdir एंड यहाँ पे मुझे उसको क्या करना है, उसका लोकेशन मुझे चेंज कर देना है. तो नया लोकेशन जो मेरा होगा वो ये वाला रहेगा. एंड विद इन दिस I want to have this one directory. ठीक है. So within my folder, and I can within this folder I can say lecture 17 and उसके अंदर I want directory that is file dir. ओके. सो देखो बेसिकली क्या हुआ, कोई एक फोल्डर के अंदर जाने के लिए भी यूज दिस, नया फोल्डर वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो.
एक फोल्डर के अंदर, तो अभी मैं कहाँ पे आ गया, चेंज डायरेक्टरी के थ्रू मेरा करंट डायरेक्टरी जो है वो लेक्चर 17 वाला जो मेरा फोल्डर है, दैट्स गोइंग टू बी माय करंट डायरेक्टरी। तो वो नया फोल्डर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एंड मुझे अगर चेक करना है तो आई कैन राइट इट हियर, os डॉट, देखो os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना ये बताएगा। सो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, ये देखो, so I can just give a comment about this wd returns current working directory. I hope this is clear to everyone. Anyone any doubt, let me know. Anyone any doubts, guys? क्लियर है सबको? नाउ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बनाया था, दैट इज फाइल dir। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है, आई कैन राइट os डॉट rmdir, डबल कोट्स में फाइल dir। लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, मैंने माउस पॉइंटर को अंदर रखा है, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके, सो देखो, अब आपका जो rmdir वाला फाइल अंडरस्कोर rmdir वाला जो डायरेक्टरी था, दैट इज डिलीटेड। पहले वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने माउस पॉइंटर chdir के थ्रू माउस पॉइंटर मैंने कहाँ पे बताया था, लेक्चर 17 के अंदर। तो लेक्चर 17 के अंदर उसको फाइल dir नाम का कोई फोल्डर नहीं मिला, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग एरर। लेकिन मैंने मेरा जो डायरेक्टरी लोकेशन है वो चेंज करके करंट जो डायरेक्टरी लोकेशन है वो ही कर दिया, तो वहां से उसको मिल गया। ठीक है, एंड हेंस rmdir, यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट rmdir, इट्स that specific directory और folder। लिनक्स में हम लोग जो डायरेक्टरी होता है उसको फोल्डर बोलते हैं। नॉर्मली आप अगर विंडोज यूज करोगे तो वहाँ पे हम लोग फोल्डर फोल्डर ही करते रहते हैं, इसके लिए आपने सुना नहीं रहेगा ज़्यादा कहीं पे। ओके, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन एनी डाउट्स, लेट मी नो। सर वो रिमूव डायरेक्टरी से रिमूव नहीं हो रहा है RMDI से। बोला ना बेटा मैंने, यहाँ पे देखो ना, ये वाला जो फंक्शन है इसको कमेंट कर दो। ओके। हाँ, बिकॉज वो कमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा ना। सो लेट्स सी, हम लोगों ने रिमूव मेथड जो है, यही प्रोग्राम में वी हैव डिस्कस रिमूव मेथड। इसके बाद में डायरेक्टरीज वाला टॉपिक देखा, mkdir क्या होता है, वी आर डन डिस्कसिंग इट। एक नया डायरेक्टरी बनाया, chdir क्या करेगा, चेंज डायरेक्टरी, है ना, करंट डायरेक्टरी जो है वो आपको चेंज कर देगा। उसके आगे नेक्स्ट जो है वो है गेट cwd, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो हम लोगों ने देख लिया। rmdir रिमूव डायरेक्टरी मेथड, ये भी वी आर डन डिस्कसिंग। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज एक्सेप्शंस, ये हम लोग करते हैं। आई गिव यू 2 मिनट्स टाइम, जल्दी से जो प्रोग्राम हम लोगों ने अभी ट्राई किए, पोस्ट योर आउटपुट क्विकली इन चैट, देन विल मूव टू नेक्स्ट। जल्दी करो चलो।
Okay, so we are trying few new functions as well. मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ what we are going to try. So we are in lecture 17. I'll just create regular expression dot python. ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग. We supposed to import RE, that's our package, regular expressions का. Then यहाँ पे I can create a simple string. Let's say मैंने यहाँ पे लिख दिया test equal to, and within this we can write this is our Python lecture going on, and then we can just say match RE, that is regular expression, उसका search method. Okay, and उसके अंदर we are going to read and check as Python word within test चेक करेंगे. ठीक है, एंड जो भी हम लोगों को मिल रहा है उसका स्टार्ट इंडेक्स, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच डॉट स्टार्ट, दैट्स माय फंक्शन. तो जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ उसका स्टार्ट पोजीशन एग्जैक्टली सेम वे एंड इंडेक्स. तो जो भी मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ उसका एंडिंग पार्ट बताएगा, तो इंडेक्स पोजीशन उसका बताएगा. मैच डॉट एंड. ओके, यहाँ पे हम लोग के पास आ गया. लेट्स एग्जीक्यूट दिस, एंड एज यू कैन सी हम लोगों का स्टार्ट पोजीशन वो बता रहा है 12 एंड एंड पोजीशन बता रहा है 18. तो मैं जो वर्ड ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ उसका ये पैटर्न बता रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो. एनीवन एनी डाउट? No, sir. चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो. सो ये एक आध दो ही ट्राई करेंगे, ज़्यादा हम लोग को नहीं ट्राई करना है. हम लोगों को वो सारा कुछ अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा उसके लिए. As and when required we can I'm just giving you one example कि हाँ you can use something of this kind जहाँ पे आप regular expressions के use कर सकते हो. So you just supposed to remember that we have something which is called as regular expressions. ठीक है, इसमें मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. I'll just comment all this and यहाँ पे हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेंगे. I'll just write test equal to, I can say my mobile number is, suppose this is a, and same way यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स कर देता हूँ मैं, तो 2 लाइन वो अलाउ करेगा. You can write my friend's mobile number is this one. ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा कि हम लोग के पास ये एक स्टेटमेंट है. अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो. import regular expression package supposed to be there. उसके अंदर ही हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं. तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ
regular expression that's going to be, let's say, my variable, जहाँ पे मैं find क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, सिंगल कोट्स \d प्लस, दैट इज मैंने जो ये टेस्ट वाला स्ट्रिंग है इसके अंदर डिजिट्स है क्या नहीं, ये वो फाइंड करेगा। अगर मिलता है उसको तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच टू रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट फाइंड ऑल द डिजिट्स विच इज देयर, से कौन से पैटर्न पे, रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस के ऊपर /d जो मैंने डाला ये डिजिट्स फाइंड करने में हेल्प करता है, उसको मैंने सेव किया रेगुलर एक्सप्रेशन ये वेरिएबल के अंदर। एंड किस में से ढूंढना है, तो टेस्ट नाम का मेरा जो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें से। एंड देन जहां जहां पे मैच होगा वो आपने मैच वेरिएबल में उसका आउटपुट कैच किया एंड उसको मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूँ बस। एग्जीक्यूट दिस। हाँ, ओके सो देखो यहाँ पे दिस वन इज वर्किंग। सो कभी कभी जब सिंगल ट्रिपल कोट्स अगर वर्क नहीं करता है ना, देन यू सपोज टू ऐड डबल कोट्स 3 टाइम्स। यहाँ पे देखो ये डबल कोट्स मैंने स्टार्ट में 3 टाइम्स ऐड किए है एंड एंड में मैंने डबल कोट्स 3 टाइम ऐड किया है। यू सपोज टू चेक दिस आउट। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट लेट मी नो। क्लियर है सबको? क्या किया हम लोगों ने, Yes, sir. वी हैव एडेड रेगुलर एक्सप्रेशन और उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट डबल कोट्स 3 टाइम्स स्टार्ट में एंड डबल कोट्स 3 टाइम्स एंड में। जब मुझे 2 लाइन में लिखना है, ये अगर मैं सिंगल कोट्स लिख रहा था तो वो उसको एज अ कमेंट कंसिडर कर रहा था या क्या पता नहीं, बट समटाइम इट हैपेंस, सो आप ये चेंज कर दो। /d रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरा जिसके अंदर डिजिट्स जो है वो फाइंड करने में हेल्प करता है आपने जो स्ट्रिंग दिया है। तो मैंने क्या किया, फाइंड ऑल, जितने भी डिजिट्स है मेरे स्ट्रिंग में, किस में से कौन से एक्सप्रेशन के बेस के ऊपर ये वाला एंड किस में से फाइंड करना है, ये स्ट्रिंग में से, और जो भी कुछ मिलेगा उसको सेव करो मैच के अंदर एंड प्रिंट मैच, दैट्स इट। सो वी हैव डन दैट। Okay, anyone, any doubt? Let me know. Now, after this, we can try. मैं ये सबको कमेंट कर देता हूँ and let's try other program. Okay, so I've commented this part and now we are trying another program जहाँ पे I mean another pattern, just example, regular expression है and within this regular expression यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I'm just going to write here re regular expression dot compile। अब ध्यान से देखो क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी कुछ स्ट्रिंग हम लोग एंटर करेंगे उसमें से A to E ये कैरेक्टर्स जहाँ पे भी रहेंगे ना उसको हम लोग फाइंड करेंगे। सो कंपाइल जो है इट क्रिएट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे दिया, इफ आई जस्ट राइट इट हियर, फाइल, दिस इज अ regular expression, okay। Now next we have, this is the
कैरेक्टर क्लास। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे कैरेक्टर क्लास कौन सा कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया, A to E, दैट्स द कैरेक्टर क्लास वी हैव डिफाइंड। तो आई कैन राइट which is equivalent to A B C D E। तो अगर मैं A to E लिखता हूँ मतलब वो A to E ही कंसिडर करता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग A B C D E आई कैन राइट A और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, E तक जाएंगे। और अब क्या होगा, मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग मैच लिखूंगा ना उसमें से ये वाले A to E जो भी जहाँ पे भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको वो मैच करके बताएगा, बस यही हम लोगों का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइंड ऑल। क्या करता है फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, आई कैन राइट सर्च और सर्चेस फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन and returns a list। सो लेट्स सी, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट राइट प्रिंट p डॉट find all function and within this I'll write this is a example of our Python regular expression। let's see, देखो तो हम लोग के स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स कितने बार आए, तो दिस इज के बाद में यहाँ पे ए आया, उसके बाद में ये ई आया वो लिया, देन एग्जाम्पल के अंदर वापस ए आया, वापस ई, देन वापस यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेगुलर में ई, देन अगेन ए, देन अगेन ई, ट्वाइस ई वी हैव। तो लास्ट में देखो यहाँ पे आपको ट्वाइस ई दिख रहा है। So I hope this is clear to everyone. This is another example of regular expressions. ठीक है, anyone any doubt guys, anyone any doubt? No, जल्दी sir. बता। नाउ इसके पहले जो मैं हम लोगों ने ट्राई किया ना वो मैं आपको एक बताना भूल गया। सो विल जस्ट कमेंट दिस, सबको साथ में कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इक्वल टू कंपाइल। ध्यान से देखो अब मैं क्या कंपाइल कर रहा हूँ, आई विल राइट स्लैश डी। तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होगा, आई कैन जस्ट राइट इट हियर, स्लैश डी इज इक्विवेलेंट 0 to 9। ठीक है, राइट प्रिंट p डॉट फाइंड ऑल ब्रैकेट में। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, आई कैन राइट Python lecture starts at 7:30 a.m. to 9:10 a.m. 28 August 2021। ठीक है, ध्यान से देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हो गया,
Just 1 minute. सॉरी, यहाँ पे मैं RE डालना भूल गया. ओके, सो यहाँ पे देखो, ये मैंने RE डाल दिया. नाउ दिस इज द आउटपुट एंड पे हम लोग प्लस डालते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. दिस इज द आउटपुट. So what do you think? What is the difference between D plus and D? बताओ जल्दी से. Anyone? I can say slash D plus will match a group of 0 to 9. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 to 9 में जो भी नंबर्स आएगा ये उसका ग्रुपिंग करके बता रहा है. मैंने यहाँ पे 7 लिखा, फिर डॉट 30 डाला, तो ये देखो ये 30 साथ में बता रहा है. देन 9 10 डाला, तो 9 and 10. देन 28, तो वो 28 बता रहा है. देन 21, सो वो यहाँ पे ग्रुप करके बता रहा है. दिस गिव्स विदाउट एनी ग्रुपिंग. क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? लेट मी नो. एनीवन एनी डाउट्स? जल्दी गाइस, हेलो, कोई भी डाउट है किसी को? No, sir. What about others? चलो जल्दी. दिस इज द लास्ट प्रोग्राम फॉर टुडेज लेक्चर. अब हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीक मिलेंगे. एंड ये सब मैंने इसके लिए बताया आपको बिकॉज दिस गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर MCQs. सो ट्रिप की MCQs जो बनेंगे वो ऐसे ही पैटर्न्स के बेस पे बनेंगे. तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने RE नहीं डाला था तो इट वाज शोइंग कि फाइल नेम इज मिसिंग. तो एग्जाम में भी अगर मैं आपको बताता हूँ कि P इक्वल टू कंपाइल डायरेक्ट अगर मैंने दे दिया है, देन यू सपोज टू राइट सिलेक्ट एन ऑप्शन कि वहाँ पे एरर आएगा, आउटपुट नहीं आएगा. आपका इंटरनल के अंदर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए थे, तो आई डोंट नो आपने प्रॉपरली चेक किया था या नहीं. बिकॉज कहीं कहीं पे डबल इक्वल टू के बीच में स्पेस था. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग आउटपुट इट्स गोइंग टू जनरेट अ एरर मैसेज. ठीक है, ओके. चलो, देन विल कीप टुडेज लेक्चर टिल 10 पॉइंट. हम लोग नोट्स में से ये एक्सेप्शन वाला जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक. रेगुलर एक्सप्रेशन, वी हैव समथिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग. मैंने आपको एक बेस बता दिया. आपको अगर चाहिए तो यू कैन जस्ट गो एंड वर्क विद इट अ बिट, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट टाइम. देन बाय बाय. Thank you, sir. या